Good morning student, welcome to Gyanjyoti online classes. Student, now we come to chapter number 8. Okay, that natural resources. Student, you already know about the living things and non-living things. Okay, that the natural and the artificial. Okay, so natural resources. So resource, there are many types of that non-living things. Okay, that we already learned about non-living things, that the soil, water, okay, air and sunlight, that is the non-living things. And we also already learned about the ecosystem, that non-living things, that the soil, air, okay, and water, okay, and also that the air, okay. So natural resource, that is resource, there are many types of that. Natural resource has gifted many things us, and that the natural resource mainly the renewable and non-renewables. Okay, so renewable resources, like some of the natural resource can never be exhausted or completely finished, called renewable resources. Like for example, that soil, okay, sunlight, air and water, okay, renewable resources. Okay, so that substance that is present that naturally, okay, तो देखो renewable and non renewable substance जो है यहाँ पे resource, ठीक है, तो ये जो resource है ये कहाँ से, ठीक है, तो renewable जो होते हैं वो एक बार यूज किए बाद वो कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो उस टाइप का होगा, तो उसमें एग्जाम्पल आएगा जैसे कि एयर, ठीक है, जितने भी यूज करेंगे वो खत्म नहीं होगा, ठीक है, और सॉइल जितने भी यूज करेंगे वो खत्म नहीं होगा, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट जितने भी यूज करेंगे वो खत्म नहीं होगा, ठीक है, और वाटर को भी हम यूज करेंगे और उसमें रिन्यूएबल होगा, मींस फिर एक बार से हम उसको रिन्यूएबल कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉन रिन्यूएबल क्या है, जो कि फॉरेस्ट, ओके, फॉरेस्ट जब एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो फिर से एक बार नहीं आएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, सो इन फर्स्ट दैट द एयर, ओके, सो okay, air. So student, you know about the air that help the living organism that depend on air, okay, that and moving of air is called wind. Okay, student, air और wind में दोनों में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जब एयर मूव करता है तो उसको विंड कहते हैं, ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है, जब एयर क्या करेगा, मूव करेगा तो उसको हम विंड कहेंगे, ठीक है, तो ये जो है एयर, तो किस किस में यूज करते हैं, और ब्रीथिंग, ओके, सो स्टूडेंट, इन एयर देयर आर मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, दैट कार्बन डाइऑक्साइड and different type of harmful gas also present, and nitrogen also. So here that the natural resources, okay, here that natural resource, that the renewable resource, okay, and we can use the different types of the for the air, use the different technique to form the electricity, okay, and also we can use the air, their force, okay, air, that wind, okay, so wind has force and strong wind we can use and form the electricity, okay, student, देखो wind को हम यूज करके उससे हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होगा कि ये जो सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से विंड से हम नेचुरली इससे हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, इसके फोर्स जो होते हैं इस फोर्स को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एयर जो है, एयर को मेनली हम इसमें ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं, प्लांट भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो एयर जो है एक
मेन रिसोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट दैट द वाटर। So student, another types of that natural resource, that water. So student, you know about water, that the water is precious and the main important resource. Okay, that without water we cannot live. Okay, so water that we can use bathing, cooking, okay, washing. Okay, so that type of the water we can also use water that production of electricity. Okay, so student, वाटर को हम बहुत सारे यूज करते हैं, ठीक है। वाटर से क्या करते हैं कि हम इससे हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और वाटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, मेनली एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नहाने के लिए और बाथिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग, ठीक है। सो दिस इज द मेन नेचुरल रिसोर्स। ओके स्टूडेंट, so now we come to another types of that the natural resource, that sunlight. Okay, so sunlight give us heat and light. Sunlight that give us light and heat. Okay, so student, so sunlight that the important natural resource. Okay, so that source mainly plant also use the light for their photosynthesis process. So light mainly important for plant as well as animal. Okay, so we can depend on the light. Without light, that we cannot live, because we can see with the help of light. Okay, so student, देखो सनलाइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि इससे क्या होता है, प्लांट्स भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट होना जरूरी है, तभी वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा, ठीक है। और सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट दैट हेल्प द फॉर द एनर्जी, दैट द सोलर एनर्जी, so solar energy that converts into electrical energy. Okay, solar energy that converts electrical energy. तो सोलर एनर्जी क्या करते हैं, हम सोलर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सोलर सेल, by the help of solar cell. तो सोलर सेल को हम रखकर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो सन से आता है, ठीक है, सोलर एनर्जी को हम यूज करके, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल देखिए, इसमें की सोलर सेल में जो सेल होते हैं वो हीट होने से उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सो सनलाइट, ओके, सो सनलाइट दैट इज सोलर एनर्जी, so we can use this energy for the solar cooker and the light, for light. Okay, next the natural resource that is important, the soil. Okay, student, soil that the natural renewable resource, because we depend on the soil and plant also depend on soil, because that the soil, that parts of the our earth, that the upper part of the earth, and this soil that support the living organism. Okay, and some of the living organism, that the plant and also as well as animals. So this type of natural resource that we can use for our daily activity, like we can depend for our shelter, mainly our shelter, and we can also that use
the different activities in our day-to-day life. Okay, that's soil. And student देखो soil जो भी है एक renewable resource. Okay, और इससे क्या है कि हम इसमें डायरेक्टली डिपेंड है, ठीक है, कि हम यहाँ से चलने के लिए और हमारे मेनली शेल्टर के लिए, ठीक है, हम रहने के लिए यहाँ डिपेंड करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो सोइल से ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्टली वो सोइल पे डिपेंड है। जैसे कि वाटर पे डिपेंड है, इसी प्रकार ये सोइल से भी प्लांट डिपेंड है, ठीक है। और सोइल से हम क्यों डिपेंड है, क्योंकि वो हमें फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, बहुत कुछ चीज में, ठीक है। सोइल, सो सोइल आल्सो ए नेचुरल resource. And what is the origin and formation of soil? Soil कैसे बनता है, ठीक है। So mainly the process of weathering of rock, ठीक है। तो रॉक का जो छोटे छोटे बीट होते हैं, पत्थर का छोटा छोटा बीट होते हैं, उससे क्या होता है कि वेदरिंग ऑफ रॉक, जब ये जो बीट होते हैं ये प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल जो पार्ट होते हैं, ह्यूमस, तो ह्यूमस के साथ ये मिक्स कर सॉइल बनाते हैं। और इसके लिए 1000 ईयर लगता है। 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए 1 सेंटीमीटर 1000 ईयर इसको लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जो रोग होते हैं वो छोटे छोटे बीट में कन्वर्ट होने के बाद कि उसमें ह्यूमस जो प्लांट्स और एनिमल्स का पार्ट होते हैं वो मिक्स होने के बाद ये सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम द प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। एंड नाउ सॉइल एरोजन मींस सॉइल एरोजन मेनली द wind that blown away by strong wind or rain, that is called soil erosion. Okay, so मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जब रेन से और विंड से वो क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहां जो मिट्टी होती है, ये जो सॉइल होती है, ये डिस्ट्रॉय होते हैं, इसको सॉइल एरोजन कहते हैं। Next, now we come that the non-renewable resources. Okay, student, that we already know about the renewable resources, and now we come that the non-renewable resources. So, student, now we come that the non-renewable resources. So, some natural resources are very limited and could be exhausted soon because of overuse and they cannot be replaced. These are called non-renewable resources. For example, wildlife, coal, petroleum. Student, कुछ ऐसे जो रिसोर्स होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं जिसमें कि हम उसको यूज करेंगे तो एक बार यूज करने के बाद वो डबल यूज नहीं कर सकते, जैसे कि वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ में क्या है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो अगर एक बार खत्म हो जाने से वहां से फिर डबल नहीं होगा। कोयला, ठीक है, तो वो कोयल जो अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर से हमको रीयूज नहीं कर पाएंगे। पेट्रोलियम को भी हम रीयूज नहीं होगा, एक बार होने से, एक बार यूज करने से और रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले रिन्यूएबल में देखे थे कि वाटर, सॉइल, सनलाइट और एयर, इसको हम रिन्यूएबल कर सकते थे क्योंकि हम उसको जितना भी यूज करेंगे फिर उससे रिन्यूएबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिन्यूएबल नहीं होगा, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज दैट द फॉरेस्ट, ओके, सो फॉरेस्ट a large area covered with the trees, okay, and many types of shrubs, okay, and creepers, and that the bushes growing naturally and close one and another is called forest. Okay, so forest there are many that trees and creepers, shrubs, and the herb, and that types of that the non-renewable resources. Okay, so student, हम लोग देखे हैं कि फॉरेस्ट में बहुत सारे उसमें ट्रीज हैं, ठीक है, हर्ब है, सब, तो वो क्या होगा अगर एक बार उसको यूज हो गया कि एक बार वो डिस्ट्रॉय हो गया तो वो क्या होगा फिर से वो रिन्यूएबल नहीं होगा, ठीक है। और इंडिया में उसके जो लिमिट है फॉरेस्ट का वो
1/3 होना चाहिए, मतलब 3 भाग में 1 भाग फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी जो इंडिया में 5 से 1 हो गया है, ठीक है, मतलब 5 भाग में से सिर्फ 1 भाग हो गया है, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है इतना होना चाहिए, तभी एक इकोलॉजी को और इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखना, ठीक है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो लिमिट इसका हो गया है 5 भाग में से 1 भाग, तो 1/3 पहले बैलेंस करने के लिए होने चाहिए, ठीक है। So student, now we come that the wildlife. Okay, so wildlife animals, that many types of that animals. Okay, that deer, tiger, lion. Okay, so wildlife animals, that the non-renewable resources, because that there of the wildlife, that animals, after that the balance of nature will be destroyed. Because of the balance of nature, wildlife and sanctuary, that biosphere reserve and the national park important for us. Okay, तो ये क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरी है और नेशनल पार्क है, वो क्या है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उसके कंजर्वेशन के लिए। Okay, so student, now we come the non-renewable that the resources that we already learned about the forest and wildlife. Okay, so next that the minerals. Okay, so student, what is minerals? There are many resources which are found deep beneath the surface of the earth. Okay, and these resources are called minerals. Okay, so that's surface. Okay, so student देखो अर्थ के नीचे बहुत उसके नीचे में क्या है कि कुछ जो है रिसोर्स मीन्स वहां पे हमको बहुत सारा रिसोर्स मिलता है, जैसे कि हम उसको कहेंगे मिनरल्स में क्या है 2 टाइप का मिनरल्स। सो टाइप्स ऑफ मिनरल्स देयर आर 2 टाइप्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक में क्या क्या आता है? मेटालिक्स दैट मेड ऑफ मेटल, ओके, दैट आयरन, निकेल, कॉपर। ओके, सो वो जो है वो मेटालिक। नॉन मेटालिक इसमें पेट्रोलियम है, ठीक है, ऑयल है, ठीक है, और नेचुरल गैस, ये नॉन मेटालिक, ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। ओके, और ये जो है, ठीक है, जो मिनरल्स है, ठीक है, और जो कोल और पेट्रोलियम, ठीक है, तो ये क्या होता है? फॉसिल द एनिमल्स एंड the plants that after the death they can mix with the soil, and after the 1000 years that form the fossil. Okay, student, तो ये क्या है? फॉसिल जो कि 1000 years में क्या होता है? वो नीचे अर्थ के नीचे दबा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो है जो एनिमल्स होते हैं वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं, और जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या में कन्वर्ट होते हैं? कोल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, कोल में कन्वर्ट होता है। तो पेट्रोलियम किससे बनते हैं? एनिमल्स के डेथ बॉडी जो फॉसिल होते हैं, ठीक है, और जो कोल किससे बनते हैं? जो प्लांट होते हैं, प्लांट का उसका डेथ मटेरियल जो होते हैं फॉसिल्स, उससे कोल बनता है, ठीक है। सो नाउ वी कम दैट द फॉसिल फ्यूल, सो इसी को हम फॉसिल फ्यूल कहेंगे, ठीक है, ये पेट्रोलियम। ओके, एंड now there are 2 types of gas, okay, that the LPG and the LPG gas and the CNG, that the LPG liquefied petroleum gas and the CNG, that the compressed natural gas. Okay, 2 types of gas we obtain from this fossil fuel, okay, that petroleum. Okay, student, so this is your chapter number 8 that completed. Okay, thank you.